Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Today we are going to discuss MCQs regarding the right issues. This topic is under the syllabus of Jkp-Si in the Polity and Governance section. We will see MCQs regarding the rights issues in India, and we will see also the international efforts that are put forward by different agencies, UN and all, to protect the rights of the weaker sections of the world. Let us start with the question first, and the question first is the Protection of Human Right Act in India was enacted in the year. तो हमसे पूछ रहा है जो ये HRA एक्ट है, HRA एक्ट जो है ह्यूमन राइट्स एक्ट, दिस वाज एनेक्टेड इन द ईयर ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1996 and you need to remember it is option A, that is 1993. इसको हम बोलते ही है HRA Act 1993. Now, question number 2. And question number 2 is which one of the following category of fundamental rights incorporates abolition of untouchability? You need to remember this fundamental rights are in the part 3rd of Constitution. From Article 12 to Article 35, you will see the fundamental rights. There are 6 fundamental rights under the part 3rd. 7th have been deleted, and you will tell that was right to property. आपको बताना है right to property किस amendment act ने delete किया है. Was it 42 Amendment Act or was it 44 Amendment Act? You will tell it in the comment section. Now, question here is abolition of untouchability. You know, abolition of untouchability is the Article 17th article. You know, from Article 14 to Article 18, we call them right to equality. Definitely option B should be the right, that is right to equality, and this abolition of untouchability is Article 17. Now coming to question number 3, and question number 3 is Helsinki Declaration 1964 is considered with, this question is very important question because these questions are picked by JKSSB, Jkp-Si or other exams. So Helsinki Declaration 1964 is concerned with option A, war prevention, option B, human experimentation, option C, gender discrimination, and option D, child abuse. You need to remember it is with the human experimentation. So which answer is the right? Option B is right for question number 3. Coming to question number 4, and question number 4 is who introduced the concept of third generation human rights, that is 3G human rights. तो किस कॉन्सेप्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया, that is third generation human rights? Option A is Tullis Cicero, option B is Jeremy Bentham, option C John Finnis, and option D Karl Wasik. You need to remember this question, it is the Karl Wasik. Karl Wasik gave the concept of third generation human rights, and option D is right for the question number 4, that is Karl Wasik. Now coming to question number 5, and question number 5 is the Universal Declaration of Human Rights was adopted on. जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है किस पे, ह्यूमन राइट्स पे, that was adopted on the year 1948. Option A is 1st December 1948, option B is 10th of December 1948, option C is 11th of December 1948, and option D is 31 December 1948. You need to remember it is the option B, that is Universal Declaration of Human Rights was adopted on 10th of December 1948. ईयर आप याद रखना, कभी कभी ईयर ही पूछते हैं, डेट्स नहीं पूछते हैं. 1948 में और एग्जैक्टली ऑन 10th of December 1948 adopt हुआ क्या, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. Now coming to another question, and another question is the article of the Third Geneva Convention of 1949 defines the prisoners of war. देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है वो किस आर्टिकल में डिफाइन किए गए हैं, किसके, थर्ड जिनेवा कन्वेंशन जो साइन हुई कब, 1949 में. सो प्रिजनर्स ऑफ वॉर किसमें मेंशन है, इज दे आर इन आर्टिकल 1st, आर्टिकल 2nd, आर्टिकल 3rd, आर्टिकल 4th. यू नीड टू रिमेंबर दे आर इन आर्टिकल 4. सो जो आर्टिकल 4 है वो डील करता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर किससे, जो भी वॉर में हमने लोगों को या जिसको पकड़ा है किसी कंट्री ने और वो प्रिजन में है, वो जेल में है, तो इसके क्या राइट्स होने चाहिए वहां पे, वो आर्टिकल 4 में लिखे गए हैं किसके, थर्ड जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 के. नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, एंड अनदर क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल court, that is, it is not International Court of Justice, ICJ, it is another one, that's International Criminal Court, ICC, review conference 2010 held at
Paris, Kampala, Hague, Rio de Janeiro. You need to remember this was at Kampala. ये आप याद रखोगे. सो ये जो आईसीसी की मीट हुई थी, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब? 2010 में. कहां पे? कांपला में, जहां पे इन्होंने डिस्कस किए थे प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स. Now coming to question number 10, and question number 10 is, who coined the term genocide? See, these questions are very important questions. Who coined the term genocide? You need to remember option A is Raphael Lemkin, option B is Eleanor Roosevelt, and option C is Thornbury, and option D is Jefferson. You need to remember जो genocide की term थी, ये किसने दी थी? Raphael Lemkin. Option A is the right, that is Raphael Lemkin ने कौन सी term दी थी? Genocide. Now coming to question number 11. And actually, question number 11 is, which one of the following statement is not correct about the refugees? Refugees को लेके कौन सा इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? बिकॉज इट इज टेलिंग नॉट करेक्ट. सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है रिफ्यूजीज के बारे में. Option A, they are outside their country. Obviously, refugees will be outside their country, so this is not the answer. Fear of persecution. Obviously, they have the fear of persecution. They may be persecuted. Option C is absence of national protection. Obviously, they don't have national protection. So ultimately, option D right hogi. That is poverty as a reason of being outside the country. You cannot give that reason for the refugees because poverty have us mulk mein, to that's why they are outside. No, they have been migrated for their work, but they are not refugees. We can say they are migrant workers. So option D is right for question number 11. That is poverty as a reason of being outside the country. This is not the reason for किसके लिए? Refugee के लिए. Now coming to question number 12, and question number 12 is right to education, that's RT. Right to education is guaranteed under Article 14, Article 19, Article 21A and Article D, that is 21. You need to remember जो ये right to education है ना, it is exactly under Article 21A. अगर ये option में नहीं होता, let it be option C नहीं होती, then you would have gone for the option D because it is under the Article 21, exactly under Article 21A. So यहाँ पे question क्या ठीक है? ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज राइट टू एजुकेशन इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 21A. मगर इसके लिए एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट लाया गया है 2002 में. आप मुझे बताओगे वो अमेंडमेंट कौन सा है? इज दैट 81th अमेंडमेंट? इज दैट 85th अमेंडमेंट? इज दैट 86th अमेंडमेंट? और इज दैट 91st अमेंडमेंट? आप मुझे बताओगे किस अमेंडमेंट के एक्ट के अंडर राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट बनाया गया है? Now coming to question number 13, and question number 13 is fundamental duties are contained in. देखो जो fundamental duties है ना, they are in part 4. Part 4 constitution में exactly it's a part 4A. देखो part 4 जो है that is directive principles of state policy. देखो option D and option C होगी ही नहीं option. They will not be because it is actually under the part 4A. यहाँ पे part 4A लिखा होना चाहिए था, नॉट पार्ट 4, क्योंकि पार्ट 4 जो है ना वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करता है, जो कि 36 से लेके 51 तक आर्टिकल्स जो है दैट आर रिलेटेड विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन पार्ट ए एंड इट इज आर्टिकल 51A. You need to remember option A is the right, but exactly you need to remember it is part 4A. Article 51A deals with the fundamental duties. You know there are 11 fundamental duties. आप मुझे बताओगे कमेंट में, मुझे आप बताओगे किस कमेटी ने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज होने चाहिए कि हाँ इन द इंडिया? किस कमेटी के अंडर इनको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? और प्रेजेंटली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो विच ऑप्शन इज द राइट? इट इज द option A is the right for question number 13. Now coming to question number 14, and question number 14 is who was the founder of International Committee of Red Cross? हमसे पूछ रहा है कि जो ये रेड क्रॉस की जो कमिटी थी, किस पे? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका फाउंडर कौन था? Option A is Henry Dunant, option B is F. Libier, option C is Rousseau, and option D is none of the above. You need to remember it was Henry Dunant was the founder of the International Committee of the Red Cross. Now coming to question number 15, and question number 15 is the UN Subcommission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities was established in 1947 by
देखो हमसे पूछ रहा है जो ये क्या है, प्रिवेंशन करना, किसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, आपको प्रोटेक्ट करने हैं माइनॉरिटीज में हर एक कंट्री में, जो कि एस्टेब्लिश किया गया 1947 में। मगर किसके थ्रू? देखो, और कुछ ऑर्गन्स है हमारे यूएन को, जैसे कि जनरल असेंबली इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूएन, सिक्योरिटी काउंसिल इज द सेकंड ऑर्गन ऑफ द यूएन, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दीज आर ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसको किसने पास किया या इसको किसने एस्टेब्लिश किया? यू नीड टू रिमेंबर इट वाज द कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट्स। Commission on the Human Rights have established in the year 1947, that is the prevention of discrimination and protection of minorities. Now coming to question number 16, and question number 16 is, who among the following propounded the modern principle of natural justice? इनमें से किसने क्या किया? नेचुरल जस्ट, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्ट है या मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्ट, किसने प्रपोन किया? आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन ए लॉकी, ऑप्शन बी जेसमिल, ऑप्शन सी ए सी डाइसी, एंड ऑप्शन डी जॉन रवलनेस। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है वो है ए सी डाइसी। जो ए सी डाइसी है, इसने कॉन्सेप्ट लाया कौन सा? मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। Now coming to question number 17, and question number 17 is, guidelines for arrest of persons by police were given by the Supreme Court in which of the following cases? देखो कौन से गाइडलाइंस रहने चाहिए जब भी एक पर्सन को अरेस्ट करेगा कोई भी पुलिस, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ये सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर केस में दे दिया कि क्या गाइडलाइंस रहने चाहिए जब पुलिस करेगी किसी भी पर्सन को अरेस्ट। तो हमसे पूछ रहा है कि किस केस में ये गाइडलाइंस आए। Option A is Manika Gandhi versus Union of India. Option B is Otto Sankar versus State of Tamil Nadu. And option C is Hussain Nara Khatun versus State of Bihar. And option D is Jkp-Si versus State of West Bengal. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है, that is option D is the right option for question number 17. That is डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए किसको? पुलिस को, हाउ टू अरेस्ट ए पर्सन, किस वे में आप पर एक पर्सन को अरेस्ट करोगे। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। Now coming to question number 18, and question number 18 is, which amendment introduced the word secular in the preamble of Indian Constitution? Secular कहना भी एक क्या होता है कि ये जो कंट्री है ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, अगर प्रमोट करेगी तो इक्वली करेगी। सो यहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं ये भी एक राइट इशू बन जाता है, क्योंकि बाकी जो भी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सी ऑल द रिलीजन्स इक्वली। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है? विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सी जो प्रीएम्बल है ये एक ही बार ये क्या हुआ? अमेंड हुआ। और किस आर्टिकल ने इसको सॉरी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको अमेंड किया? आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सेक्युलर, देखो इसने 3 वर्ड्स ऐड किए, सेक्युलर के साथ साथ और 2 वर्ड्स क्या थे जो प्रीएम्बल में ऐड हुए हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये भी इंपॉर्टेंट है किस अमेंडमेंट एक्ट से प्रीएम्बल को क्या किया गया अमेंड, क्योंकि आज तक खाली एक ही बार ये अमेंड हुआ, 3 न्यू वर्ड्स ऐड हुए, जिसमें से एक वर्ड सेक्युलर था, 2 आपको बताने कमेंट सेक्शन में। Now coming to question number 19, and question number 19 is, the legal positivism, a school of thought which does not accept human right as merely moral or just, was propounded by। देखो लीगल पॉजिटिविज्म जो एक स्कूल है, वो क्या बताते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है, इट इज नॉट जस्ट द मियरली मतलब मॉरल और जस्ट। ये किस स्कूल ऑफ थॉट ने propound किया? ये किस स्कूल ऑफ थॉट ने लाया है? Was it Plato, Aristotle, Hegel, Austin? तो आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज द ऑस्टिन। जो ऑस्टिन स्कूल है वो क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है, इट डज नॉट एक्सेप्ट ह्यूमन राइट्स एज अ मियरली मॉरल और जस्ट। दे टेल दैट यू हैव टू गो फॉर द लीगल पॉजिटिविज्म, यू हैव टू गिव द बैकनेस टू इट, you have to bring the laws, you have to bring the various kinds of commissions, committees, provisions to protect the rights of human right. Question number 20,
लेसिस फेयर पॉलिसी इज एन एंटीथेसिस ऑफ। देखो लेसिस फेयर पॉलिसी जो है ये प्रमोट करती है कैपिटलिज्म को ये प्रमोट करती है। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म होता है जहां पे गवर्नमेंट का रोल कम होता है, जहां पे इंसान खुद, जो बिजनेस हाउसेज होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं व्हाट शुड बी इन द मार्केट, एट व्हाट रेट इट शुड बी इन द मार्केट। सो कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो लेसिस फेयर है ना, ये अगेंस्ट है किसको? वेलफेयर स्टेट को। क्योंकि जो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट क्या बताता है कि गवर्नमेंट को एक्टिव रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्टिव रोल होना चाहिए इन द प्रोडक्शन, इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इन द मार्केटिंग ऑफ द वेरियस कमोडिटीज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द लाइवलीहुड। तो लेसिस फेयर क्या है? लेसिस फेयर प्रमोट करता है कैपिटलिज्म को, व्हाइल इट इज अगेंस्ट द वेलफेयर स्टेट। क्योंकि वेलफेयर स्टेट आपका कौन सा है? सोशलिज्म आपका बात करता है, सोशलिज्म। सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन डी इज राइट। तो वेलफेयर, आप मुझे बताओगे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो कि वेलफेयर स्टेट के लिए रखे गए हैं? दैट पार्ट इज डेडिकेटेड टू, दैट पार्ट इज डेडिकेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। ये आप मुझे बताओगे कौन सा पार्ट ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन को दैट इज फॉर द वेलफेयर स्टेट। Now coming to question number 21, and question number 21 is, who is the author of the book Human Rights and Inhuman Wrongs? Important book है। Who is the author of the book Human Rights and Inhuman Wrongs? Option A is और कृष्ण अय्यर, उपिंदर बख्शी, चिरंजीव निर्मल। आपको याद रखना पड़ेगा इट इज द और कृष्ण अय्यर। जो कृष्ण अय्यर जो है, इसी ने बुक लिखी है ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बुक्स के रिलेटेड। Now coming to question number 25, that is NHRC, that's a consists of chairman and, देखो चेयरमैन के साथ साथ कितने मेंबर बैठते हैं किसमें? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये इंडिया की बात हो रही है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंसिस्ट्स ऑफ ए चेयरमैन। चेयरमैन के साथ और कितने लोग होते हैं? आपको याद रखना पड़ेगा फोर मेंबर्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? फाइव में से एक चेयरमैन एंड अदर 4 मेंबर्स कंसिस्ट्स क्या होते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि देखती है लोगों का राइट्स एटसेट्रा, जो भी इस इशू इसके साथ होते हैं। नाउ इसी के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज हेडक्वार्टर। जो अब ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपको ये फुल फॉर्मूला भी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि पूछा जाएगा क्वेश्चन। NHRC स्टैंड्स फॉर, सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है याद रखना वो दिल्ली में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? दिल्ली में। और कितने मेंबर्स है? 5 मेंबर, चेयरमैन एंड प्लस 4 अदर मेंबर्स। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज which year have in which year the changes have been made in the NHRC the act। तो आपसे पूछ रहा है कि जो ये NHRC एक्ट है इसको कब अमेंड किया गया? तो आपको याद रखना पड़ेगा इट वाज अमेंडेड इन द ईयर 2006। मगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इस ये किस डेट पे एनफोर्स हुआ? वर्ड एनफोर्स और इंप्लीमेंट किस डेट पे हुआ? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट। और इसको अमेंड जो हुआ, अमेंड इसको 2006 में इसकी अमेंडमेंट हो गई किसकी? इस एक्ट की। मगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये जो एक्ट है कब से लागू है इंडिया में। Now coming to last question, that is which of the following is not included in the committee constituted for the appointment of chairman of the National Human Rights Commission। देखो जब भी हमें चेयरमैन चुनना होता है किसका? NHRC का। जब भी हमें NHRC का चेयरमैन चुनना होता है कि कौन सा बंदा चेयरमैन बनेगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, इसके लिए एक कमेटी बैठती है। बताते हैं हम, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं बैठता है? देखो याद रखना आपको कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर भी बैठता है, ये भी एक मेंबर होता है उस कमेटी का। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो भी मेंबर होता है। लीडर ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी जो होती है वो भी बैठता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, प्लीज डू रिमेंबर इट, बिकॉज हमने बहुत सारी चीजों में देखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट, बट जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसके लिए एक कमेटी बैठती है, जो कि इन 3 मेंबर्स की कमेटी होती है। वो ये 3 मेंबर्स डिसाइड करते हैं who will be the chairman of NHRC, not the president। So which option is the right? ये क्या पूछना? Not included। So definitely not included है, it will be the president। Thank you, bye।